Story of Chilika, a 1,000 square kilometer lake on the east coast of India. Because of its connection with the Bay of Bengal, Chilika is also a lagoon. And like all coastal lagoons, its waters are rich with life. In the late 1990s, Chilika was a weed-infested, dying lake. But thanks to ecological restoration by the Odisha government, it's once again a steady source of livelihood for thousands, and a vibrant refuge for wildlife. For threatened wetlands everywhere, Chilika's resurrection is a story of hope. Chilika is one of Asia's most important wintering grounds for migratory birds, and greater flamingos are among the earliest visitors every winter. They are believed to come here mainly from the Kutch region of western India, where they breed. For them, the journey to Chilika is perhaps not such a difficult one. Other migrants are known to travel thousands of kilometers to get here. Many come from as far away as Europe and Central Asia. Chilika's waters abound with food, and for these Eurasian widgeons, it's time to replenish their reserves after a long journey. Not all of Chilika's birds are migrants. Some are permanent residents, like the little cormorants. When these expert fishermen gather to hunt, others follow, hoping for a stray morsel. A gull will even pretend to be a cormorant for a piece of the action. Many species of birds can feed simultaneously in the lake, thanks to different diets. The shape and size of their beaks and legs allows them to exploit different resources. The secret of Chilika's biodiversity lies in its mix of salt water from the sea and fresh water from rivers and streams. This freshwater to saltwater gradient creates ideal conditions for life. Every high tide brings rich nutrients from the sea into the lake. At low tide, the exposed mudflats attract hungry plovers and sandpipers. For crabs, the mudflats are not just home, but also an important source of food. Hidden in the substrate,
are microscopic organisms which the crabs extract with astonishing efficiency. The crabs must hurry, for in a few hours the tide will be back. ब्रह्मणा शांति 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 स्वस्थ पिला माने आज मातृभाषा कालांश को आपन को स्वागत तथा अभिनंदन। पिला माने आम मनरे बेले बेले भावना आसे आमे भारत वर्ष रे जन्मग्रहण करिछु आमर एक गौरव गर्व बासे गर्व गौरव नहीं आमे भारतवासी बोली निजको परिचय देइछु। जेतरा आमे सिंहावलोकन करू आम मनरे काहेकि गर्व सृष्टि होइछि अनेक कारण अछि। भारतवर्ष एक स्वाभिमान देश। विभिन्न प्रकृति यही देश रे राजनीति करि थाए। विभिन्न भाषा भाषी लोक यही देश रे बसवास कर थांती। जाति धर्म वर्ण निर्विशेष रे आमे समते एक बोली आमे गर्व करू आमे समस्त भारतीय। जोटा आमे कहिबा भारतर वैशिष्ट्य होउची विभिन्नता मध्य एकता। आ ताहा मध्यरु आमर उत्कल प्रदेश बा आम ओडिशा राज्यटी एक अनन्य। उत्कल तुही चारु अलंकार, उत्कल तुही शोभार भंडार। उत्कलर प्रकृति राजी को यदि आम अवलोकन करिबा तेबे आम देह शीते उठे। कोरापुटर से सबुजिमा घेरा पर्वतमाला को यदि आपण अवलोकन करिवे काश्मीर सौंदर्य ठारू बा मसूरी सौंदर्य ठारू कौन सी मात्रा कम नुहे कि आम कोरापुटर से सबुजिमा थोड़े देखा जाए। आउ गोटे विशेषत्व अच्छी ओडिशा रे विभिन्न नद नदी पहाड़ पर्वत झरणा समुद्र सबु विराजमान। आउ एक वैशिष्ट्य अच्छी एठारे दुईटी ह्रद रही अछि। सेथु गोटे हूँ मधुर ह्रद गोटे ह्रद लवणाक्त। से मधुर ह्रद ना हूँ अंशुपा। ये अंशुपा ह्रद मध्य ओडिशार सौंदर्य को बहुगुणित करिवारे किछि कम भूमिका ग्रहण करेनि। सेहीपरि चिलिका ह्रद उत्कलर उत्कर्षता को अभिवृद्धि करिछि। उत्कल प्रदेश से कला भास्कर्य मंडित होइथिबारु ता नाम उत्कल बोली देइछु। उत्कलर उत्कर्षता को अभिवृद्धि करिवारे चिलिका काव्यर भूमिका किछि कम नुहे। चिलिकार अपरूप सौंदर्य को देखि सबु कवि मानस को मनरे आंदोलित सृष्टि होइछि। गोपबंधु दास चिलिका कूଳରେ विचरण कला बेले तांकर मन उन्मद हो जाइथिला, उन्मादता सृष्टि हो जाइथिला। भाव विहोल कंठरे गाई उठिथिले रह रह क्षणे बाष्पीय सकट देखिबि चिलिका चारुचित्रपट चित्रमणि जेणु नाही अनुभव वास्तव विश्व की छवि संभव नील बिचिमाला धीरे धीरे जाए लागई स्वपने देखिला पराए इत्यादि इत्यादि। तथापि जेतु से समाज सेवी से चिलिकार सौंदर्य मज्जी न जाई पुणी कर्म क्षेत्र को फेरी जा पाई गोटे पद लिखिथिले इच्छा मते काहू चली अबा जन समाज निजर नुहे निज मन। ए थिला चिलिका काव्यर बा सरी चिलिका दृश्यर प्रभाव कवि मानस मध्य। किंतु गोपबंधु कथा कहवा पूर्व
ଆପଣ ମନେ ରଖିବା କଥା ଯେ ଚିଲିକାକୁ ଅତି ଆପଣାର ଅତି ହୃଦୟ ସହିତ ଭଲ ପାଉଥିଲେ କବିବର ରାଧାନାଥ ରାୟ। କବିବର ରାଧାନାଥ ରାୟଙ୍କର ଚିଲିକା କାବ୍ୟ ଆଜି ବି ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଶ୍ରୀବୁଦ୍ଧି କରିବାରେ କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ କମ୍ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିନି। ଚିଲିକା କାବ୍ୟ ଖଣ୍ଡକାବ୍ୟ ରାଧାନାଥ ରାୟଙ୍କର ସେ ଚିଲିକା ଖଣ୍ଡକାବ୍ୟ ଆଜି ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବାରେ ସମର୍ଥ ହୋଇପାରିଛି। ପିଲାମାନେ ଆପଣ ତ ବହୁତ ଛୋଟ ପିଲା, ସାହିତ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗଭୀର ଅନୁଭୂତି ଅନୁଭବ ଆପଣମାନଙ୍କର ଅଭାବ। ଆଜି ଆମେ ସେ ଚିଲିକା କାବ୍ୟ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପୂର୍ବରୁ କବିବର ରାଧାନାଥ ରାୟଙ୍କ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଦ୍ୱିପଦ କହିବି। ତାପରେ ଆମେ ସେ ଚିଲିକାର ସାୟନ୍ତନ ଦୃଶ୍ୟ, ମନଲୋଭା ଅପରୂପ ସାୟନ୍ତନ ଦୃଶ୍ୟ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋକପାତ କରିବା। ପିଲାମାନେ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଅନେକ କବି ଅନେକ ପ୍ରାବନ୍ଧିକମାନଙ୍କର ପରିଚୟ ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛି। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ସାରଳା ଦାସଙ୍କର ପ୍ରାଚୀନତା। ସାରଳା ଦାସ ଆମର ଆଦି କବି ଏବଂ ପ୍ରାଚୀନ କବି। ପୁରାଣ ପ୍ରୀତି, ପୁରାଣ ପ୍ରେମ, ପୁରାଣ ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧା ତାଙ୍କ କବି ମାନସକୁ ଉଦ୍ବେଳିତ କରିଥିଲା। ଏହା ପରେ ପରେ ଆସିଥିଲେ ପଞ୍ଚସଖା ଯୁଗ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଭକ୍ତ ରସରେ ରସାୟନିତ କବି ଅତିବଡ଼ି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ, ବଳରାମ ଦାସ, ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦାସ, ଯଶୋବନ୍ତ ଦାସ ଏବଂ ଅନନ୍ତ ଦାସ, ଏମାନଙ୍କୁ ଭକ୍ତି ଯୁଗର ପଞ୍ଚସଖା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏ ଭକ୍ତି ଯୁଗର ପଞ୍ଚସଖାଙ୍କର ଆଦର୍ଶ ଭକ୍ତି ପ୍ରାଣରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ରସାୟନିତ। ଏହା ପରେ ପରେ ଆସିଥିଲେ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ। ରୀତି ଯୁଗର ସେ ଥିଲେ ସ୍ରଷ୍ଟା। ରୀତି ଯୁଗର ଯେଉଁ ପ୍ରଣୟିନୀ, ଯେଉଁ ପ୍ରକୃତି ପ୍ରେମ, ଯେଉଁ ରୂପ ବିଳାସ, ଏସବୁ ଅନେକ ଗୁଣକୁ ଆଧାର କରି, ଅନେକ ଭାବକୁ ଆଧାର କରି ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ତାଙ୍କର ସାମ୍ରାଜ୍ୟକୁ ସାହିତ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଗେଇ ନେଇଥିଲେ। ଏ ଯେଉଁ ତିନୋଟି ଯୁଗ କଥା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଲି, ଆଦି ଯୁଗ, ପଞ୍ଚସଖା ଯୁଗ ଏବଂ ରୀତି ଯୁଗ, এই ତିନି ଯୁଗର ଆଦର୍ଶରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ତ୍ରିରସ ଧାରାକୁ ବହନ କରି ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରୂପ ନେଇ ଉତ୍କଳ ପ୍ରାନ୍ତରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ରାଧାନାଥ ରାୟ। ରାଧାନାଥ ରାୟ ତାଙ୍କର ଘର ବା ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ହେଉଛି ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସୋର ଅନ୍ତର୍ଗତ କେଦାରଫୁଟାରେ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ 1948 ମସିହା ଏବଂ ସେ 1848 ମସିହା ଏବଂ ସେ 1908ରେ ତିରୋଧାନ କରିଥିଲେ। ରାଧାନାଥ ରାୟ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟର ଅଧିକାରୀ। ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ବିଷୟରେ ଯେତେ କହିଲେ ମଧ୍ୟ ସେତିକି କମ୍ ହେବ। ସେ ଜଣେ ଶିକ୍ଷାବିତ, ସେ ଜଣେ ବହୁ ଶାସ୍ତ୍ରଦର୍ଶିତା, ଜଣେ ପ୍ରକୃତି ପ୍ରେମୀ, ପ୍ରକୃତି ପ୍ରାଣା। ଗୋଟେ ସାହିତ୍ୟିକର ଚରିତ୍ର ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରତିଫଳିତ। ଆମେମାନେ କହୁ ସେଇମାନେ ସାହିତ୍ୟିକ ହୋଇପାରିବେ ଯେଉଁମାନେ ସହୃଦୟା ସାହିତ୍ୟିକା। ବାସ୍ତବରେ ଉଦାର ହୃଦୟଯୁକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ ରାଧାନାଥ ରାୟ। ରାଧାନାଥ ରାୟଙ୍କର କାବ୍ୟ, ରାଧାନାଥ ରାୟଙ୍କର କବିତା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଭିନ୍ନ, ଅନନ୍ୟ। ସେହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟିକମାନେ ବା ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ସମାଜ ତାଙ୍କୁ କିଛି କମ୍ ସମ୍ମାନ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ କବିବର ରାଧାନାଥ ରାୟ ବୋଲି କବିବର ଉପାଧିରେ ଭୂଷିତ କରିଛନ୍ତି। ରାଧାନାଥ ରାୟ ଛୋଟବେଳୁ ବଡ଼ ମେଧାବୀ ଛାତ୍ର ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାଙ୍କର ଦୁର୍ବଳତା ଥିବାରୁ ସେ ପ୍ରଥମେ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରେ ଶିକ୍ଷକତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ନାନାଦି ଅଧିକାରୀ ସ୍ଥାନରେ ସ୍ଥାନିତ ହୋଇ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରକୁ ସରସ ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ଆହୁରି ରୁଚିବୋଧ କରିବା ପାଇଁ, ଉନ୍ନତି କରିବା ପାଇଁ ସେ ନିଜର ମନୋନିବେଶ କରିଥିଲେ।
एवं साहित्य को ओडिया साहित्य को सुदृढ़ करने पाई अनेक कार्य अनेक काव्य कविता रचना करी से ओडिया साहित्यिक मानकर ठारे एवं ओडिया पाठक पाठिका मानकर ठारे चिरस्मरणीय प्रातस्मरणीय अविस्मरणीय हो पारिछंती। मु एठारे से राधानाथ रायंकर किछि सृष्टि संपद विषय आलोचना करी। पिला माने राधानाथ रायंकर सृष्टि संपद एक अनन्य से थिले आधुनिक ओडिया साहित्यर प्राण प्रतिष्ठाता से थिले आधुनिक ओडिया साहित्यर प्राण प्रतिष्ठाता से थिले आधुनिक ओडिया साहित्यर स्रष्टा प्राचीन रीतिनीति प्राचीन काव्य कविता को नूतन शैली नूतन रीति रे वर्णना करिवारे से थिले सिद्धहस्त ताही थिला तांकर व्यक्तित्व ताही थिला तांकर स्वतंत्रता। आपण जानिछन नै कहि परिबि नाही आमर ओडिया साहित्यर प्रथम प्रबंध ओडिया साहित्यर प्रथम प्रबंध नाम होची विवेकी। से ओडिया साहित्यर प्रथम प्राबंधिक रूपे परिचय सम्मानर अधिकारी होइतिले राधानाथ राय। विवेकी प्रबंध रचना करथिले 1873 मसीहा। या ओडिया साहित्यर प्रथम प्रबंध रूपे नामित होइछि। परवर्ती समय से गोटे गल्प रचना करथिले जो गल्पर नाम होछि इतालियो जुबा। इतालियो जुबा को आधार करी इतालियो जुबा नामक एक गल्प रचना करथिले। परवर्ती समय से काव्य क्षेत्र को ओह्लाई आसीथिले। तांकर एक 5टी गाथा काव्य रचना करथिले। से 5टी गाथा काव्य होछि केदार गौरी नंदिकेश्वरी चंद्रभागा पार्वती उषा। पिला माने तांकर मु कहली से प्रथम प्राबंधिक ओडिया साहित्यर प्रथम प्राबंधिक रूपे सम्मानर अधिकारी होइथिले। से रचना करथिले प्रथम प्रबंध जार ना होछि विवेकी रचना करा जायथिला 1873 मसीहा रे। परवर्ती समय इतालियो जुबा नामक एक गल्प रचना करथिले। परवर्ती समय से काव्य क्षेत्र को ओह्लाई आसीथिले। तांकर 5टी गाथा काव्य पिला माने मन रखिए परीक्षा बेले पड़े उषा केदार गौरी चंद्रभागा नंदिकेश्वरी पार्वती बा केदार गौरी नंदिकेश्वरी चंद्रभागा पार्वती उषा ये 5टी तांकर गाथा काव्य। परवर्ती समय से एक खंड काव्य रचना कले जहाँ ना चिलिका। जो चिलिका विषय में आपण मान आगे आलोचना कर सारी। से चिलिका काव्य या एक खंड काव्य हेले मध्य एहाकु साहित्यिक माने एक प्रकृति काव्य बोली ग्रहण करछंती। प्रकृति काव्यर सम्मान से अधिकारी मध्य होई परिछि। चिलिका को नायिका रूपे वर्णना करछंती कविवर राधानाथ राय। निजर अति प्राणप्रिय निजर अत्यंत आग्रह निजर अत्यंत भावयुक्त काव्य तांकर होची चिलिका। जदि राधानाथ राय आज ओडिशा रे अत्यंत परिचित बोधे मु चिंता करी से चिलिका काव्यर रचना दृष्टि आमे से चिलिका काव्यर रचना को आलोचना करिबा। परवर्ती समय रचना कले एक महाकाव्य किंतु यह थिला असंपूर्ण महाकाव्य जार ना होची महायात्रा। यह अमित्राक्षर छंदरे रचित जे महायात्रा महाकाव्य। तापर रचना कले व्यंग काव्य। यह संपूर्ण रूपे ओडिशा बा ओडिशार अधिवासी मानक उत्कलीय मानक पाई एक संजीवनी परि कार्य करिथिला। अर्थात उत्कलीय मानक जागृत करिबा पाई ए स्वतंत्र ओडिशा गठन करिया समय उत्कलीय मानक जागृत करिबा पाई उत्कलीय मानक सचेतन करिबा पाई जे विदेशी मानकर चाटुदार न होई सेमानकर वृथा प्रशंसक न होई निज कर्तव्य अनुप्राणित करिबा पाई से एक काव्य रचना करथिले। से होची व्यंग काव्य जार ना होची दरबार। तापरे विभिन्न काव्य रचना कले जजाति केशरी दशरथ वियोग सावित्री चरित उर्वशी। परवर्ती समय क्षुद्र कविता रचना करथिले शिवाजी उत्साह वाक्य दुर्योधन रक्त नदी संतरण। एपरि अनेक काव्य कविता रचना करी निजे निजर परिचय सहित ओडिया साहित्य को श्रीबुद्धि करिवारे तांकर अवदान अत्यंत ग्राह्य अत्यंत स्वागत योग्य। आउ गोटे कथा मु छाड़िली से होची
तांकर एक अभूतपूर्व ज्ञान तांकर विज्ञता ना से कौन ना से होची त्रिभाषी विशेषज्ञ ना गुरुजी त्रिभाषी विशेषज्ञ माने कौन ना से केवल ओडिया रे लिखुतले ता नुहे संस्कृत रे तांकर विचक्षण पांडित्यर अधिकारी होते संस्कृत रे अगाध पांडित्य से हासिल करथिले जेपरी संस्कृत रे पांडित्य लाभ करथिले जेपरी से ओडिया रे काव्य कविता रचना करथिले सेही परी इंग्रजी साहित्य रे मध्य तांकर दक्षता कम नथिला। एतर व्यतीत आपण माने जानिथिबे एक अत्यंत मनोलोभा संगीत एवं अत्यंत लोकप्रिय संगीत सर्वेषां नु जननी भारत धरणी कल्पयतेयम यही कविता रचना करी से मध्य संस्कृत रे तांकर पारदर्शिता देखाई पारथिले। अनेक संस्कृत काव्य को अनुवाद करथिले एपरी मेघदूत एवं तुलसी स्तबक परी अनुवाद साहित्य इत्यादि तांकर पारदर्शिता तांकर काव्य बा तांकर कवि गुण को श्रीबुद्धि करि पारिथिला। एहीपरि मु जदि कहिबी आमे जेते कहिले मध्य मु आगुरु कहिछि जे राधानाथ राय विषय रे आमे जेते कहिले मध्य ता सेतिकी कम हबो। राधानाथ राय जदि ओडिया साहित्यर पृष्ठभूमि रे अवतरण कर नथांते वास्तव रे ओडिया साहित्य किछि अपूर्णांग रहि जाई थांता। या केवल मोर परिकल्पना नुहे ओडिया भाषा उपरे जेते जन गवेषक अछंती जेते जन ओडिया भाषा को भल पाइछंती समस्त को हृदय रे ए प्रतिक्रिया जागृत होईछि। ठीक अछि मु मात्र सेही काव्य उपरे बा सेही चिलिका काव्यर से चिलिकार सायंतन दृश्य जो कविता से रचना करछंती तादर मात्र 2 धाड़ी पढ़िबी। नेक्स्ट पीरियड रे एक कविता विषय रे आलोचना करिया। पिला माने आ गोटे कथा कहिले आपण खुशी हेबे जेतु से ज्ञान आपण मानक पाखरे पूर्वरु मु देइछि से होछि छंदर ज्ञान। चिलिका काव्य जो रचना करा जायथिला बा आमे जो पढ़िबा से चिलिका काव्य नटवाणी विभास केदार छंदरे रचित। नटवाणी विभास केदार छंदर लक्षण विषय मु आउ थरे आपनको पुनः स्मरण कर दउछि। या 2 पाद रे एक पद प्रत्येक पाद अक्षर संख्या 12 यार तृतीय षष्ठ नवम और शेष अक्षर जतिपात हुए। ए छंद पढ़ला बेले मु आपण मानकु गोटे उदाहरण देइथिली उत्कल कमला विलास दीर्घिका मराल मालिनी नीलांबु चिलिका। ठीक पिला माने एई छंद एई स्वर एई लय एही जतिपात को आधार करी आमे से चिलिकार सायंतन दृश्य कविताटी को किछि पाठ करिवे। परवर्ती समय आप अभ्यास करिथिबे घरे पढ़िथिबे आउ कविता विषय रे आपनको आग्रह आपनको श्रद्धा आपनको निष्ठा रहिले कविताटी को अति सहज सुंदर भाव आपण बुझी पारिबे। जेते बुझीबे या भितरु सेतिक रस आपण माने आस्वादन करिया पई समर्थ होई पारिबे। मोर आशा विश्वास एक काव्य सुनी सारिया परे निश्चित आपण माने याकू अभ्यास करिवे। मु टिके पढ़ी दउछि आपण माने सुनतु। प्राची मूल एबे मीनजी बिनाबे छायाकारे चित्र दिशे ठावे ठावे मत्स्य धरी सेहु समुद्र मुहाणी निज गृह कथा भाबिए कध्याने भालेरी शिखरे संध्याता आरा देखी आसंती पटिका मोहल्ला से टेकी। पिला माने आज पाई एतिकी आपण मान पाई गोटे बड़ होमवर्क कहूँ कहीं ना आपण मान टिके गुरुत्व नहीं बोली वास्तव में होमवर्क बड़ नहीं गोटे मात्र प्रश्न जे प्राबंध जो कवि राधानाथ रायंकर विषय जहाँ जान लेख आपण लेखिवा समय ताकर जो मु कहली जो प्रथम प्रबंध प्रथम गल्प बा तांकर जो गाथा काव्य तांकर खंड काव्य तांकर व्यंग काव्य तांकर महाकाव्य तांकर काव्य तांकर क्षुद्र कविता एगुड़िक पॉइंट दे विभाग भाव में लिखिबे। सेते पुणी लिखिया पूर्वर तांकर वैशिष्ट्य विषय में जहाँ उपस्थापन कली आपण मन दे शुणिबे ताकू आधार करी तांकर वैशिष्ट्य संपर्क रखिबे। कारण आम मानक पई जो माने पथ प्रदर्शक आम मानकर जीवन में जो माने अग्रसर भूमिका ग्रहण करछन्ते सेमानक स्मृतिचारण करबा आमर धर्म आमर लक्ष्य तांकू जेतिकी सम्मान दबा
आम से सम्मान अधिकारी होगा। ये अनुरोध को रक्षा करी आपण एक सुंदर भाव जो कविवर राधानाथ रायंकर परिचय को उपस्थापन करेंगे। परिचय देवा समय आपणकर पद्य खातार गोटे साइड्रे आपण राधानाथ रायंकर चित्र संग्रह करी ता साइड्रे लिखिए राधानाथ राय, समय 1848 1908, बालेश्वर, सोर एवं केदारपुर। दयाकर यही प्रकार सुसज्जित भाव में राधानाथ राय को सम्मान पूर्वक तांकर परिचय उपस्थापन करने आपण मानक मोर विशेष विशेष अनुरोध। ये गोटे मात्र आपण मान होमवर्क रहिला।